गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज परवेज खान। दिस इज आईजेड स्टडी सर्किल। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको द फन दे हैड, ये चैप्टर है इंग्लिश का, क्लास 9th पहला चैप्टर है। इसकी समरी मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा और इसके बाद मैं उसको हिंदी में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में दोनों तरह से मैं आपको इसकी समरी बताने जा रहा हूं। अगर किसी को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। At first, I will tell you about the author of this chapter, that is Isaac Asimov. Isaac Asimov was an American writer of biochemistry at Boston University. He wrote or edited more than 500 books. He was born in 1920 and he died in 1992. Viewers, if you are a teacher, this video will be beneficial for you too. By this video, you can get an idea that how to present this chapter in class. So let's get started. The fun they had throws light on an interesting aspect of technological world we will have in the future and also in present. Consequently, it is set in the future where two children discuss the way things functioned in the earlier days. Consequently means, students, I have given the meaning of the consequently, that's why. You can say that's why. You can use the word that's why in place of consequently. Further, they talk about the book which comprise of paper instead of telebooks they have now. So the mean of further, next, and mean of comprise, be made of. It is rather interesting to read about the conversation between the little kids. They get fascinated by the concept of a school which prevailed in the days of their grandparents. Moreover, they also talk about that how those days were much more fun. The fun they had does show us the reality of technology taking over in the near future. The story begins with two children named Margie and Tommy. It takes place in the world of future where computers dominate everything. It also shows how the concept of classrooms and schools has transformed completely. It is the year of 2157 and Margie is writing in her diary about how Tommy found a book. This book was of Tommy's grandfather when he was a little kid. Margie learns about how they used to print all the stories on paper back then. Further, they read the book themselves and find the feeling of turning pages over rather funny. It was funny because they were not in the habit of reading still words, only ones in motion, that too on a screen. We learn in the future there are no books, only telebooks. They store them in TV sets and computers. After that, it takes an interesting turn. She learns that schools were very different back then. They had actual persons who were teachers. It is surprising because she has only robots which teach her. She does not like schools because of lots of reasons. The school she studies does not have any classmate. In fact, it does not even have races or playground. Margie and Tommy study in virtual classroom. They have robots as teachers. Most importantly, her school is next to her bedroom only. It is a room full of electronics, robots, gadgets. The computer software teaches her everything. When Margie attends her school after learning about the earlier ones, when she starts studying, she cannot help but think about the earlier days. Margie wonders of the fun of her grandparents. She imagined kids from different neighborhoods coming together merrily to attend the school. Moreover, the fact that they were taught same thing amused her. It was because everyone would help each other in their homework. Thus, in the end, she left wondering about the fun they had. That's all, students. This summary has been completed and now I am going to tell you the summary in Hindi. तो अब मैं आपको इस चैप्टर की समरी हिंदी में बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, अटेंटिवली सुनिए। ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है
जिसमें फ्यूचर के बारे में बताया गया है। तकरीबन 150 या 200 साल बाद स्कूल कैसे होंगे, क्लासेस कैसी होंगी, बुक्स कैसी होंगी, इन सारी चीजों को लेकर इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया है। और इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, एक मार्जी और एक टॉमी। बोथ ये दोनों फ्रेंड्स हैं और टॉमी को एक बुक मिलती है। उस बुक के बारे में मार्जी अपनी डायरी में लिख रही है और वो बुक उन्होंने पहली बार देखी थी क्योंकि ये बुक जो थी उनके दादाजी के जमाने की थी, जब वो एक छोटे बच्चे थे, उनकी ये किताब थी। तो इन दोनों बच्चों ने ऐसी बुक को देखा नहीं था कभी भी, क्योंकि वो जो बुक्स पढ़ते थे वो अपने कंप्यूटर्स या टीवी में जो स्टोर्स होती थी बुक्स, उन्हीं को पढ़ते थे। और स्टिल वर्ड्स, उनको पेजेस का पलटना, वर्ड्स का रुके रहना, स्टिल रहना, ये उनको बड़ा फनी लग रहा था, बड़ा मजाकिया सा लग रहा था। तो इस बारे में वो डिस्कस करते हैं। पहले बुक के बारे में डिस्कस होता है, फिर स्कूल के बारे में डिस्कस होता है, क्योंकि उस बुक में स्कूल के बारे में दिया हुआ था। तो मार्जी के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, बहुत ज्यादा उत्सुक है वो ये जानने के लिए कि पहले जमाने में स्कूल कैसे होते थे। अब हम ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे स्कूल ऐसे होने जा रहे हैं और हो भी चुके हैं। लॉकडाउन के बाद से और लॉकडाउन के दौरान से हमने ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है और हमारे जो स्कूल्स हैं अपकमिंग डेज में बिल्कुल वर्चुअल पूरी तरह से कंप्लीटली होने वाले हैं। अब जैसा कि इसमें बताया गया है 200 साल बाद होने वाले स्कूल्स के बारे में, तो इसमें यही बताया गया है। इसाक एसिमोव जो कि एक साइंटिस्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं बोस्टन यूनिवर्सिटी में, तो उनकी इमेजिनेशन है उस टाइम जब उन्होंने लिखा था इसको, तो वो तो और ही बहुत पहले का जमाना था कि 200-300 साल के बाद स्कूल्स कैसे होंगे, और वो स्कूल बिल्कुल होने जा रहे हैं, हो चुके हैं। मार्जी का स्कूल, उसके बेडरूम के आगे वाला कमरा उसका स्कूल है, वहां पे वो एक रोबोट से पढ़ती है और उस रोबोट पे जैसा कि स्टोरी में है कि थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो इसलिए ये अपने जो ज्योग्राफी का टेस्ट है इसका, उसमें फेल हो रही है बार बार, अगेन एंड अगेन ये फेल हो रही है। तो इसकी मदर जो है उसके इंजीनियर को बुलाती है, रोबोट का जो इंजीनियर होता है उसको बुलाकर उसे बताती है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो उसकी मदर को बताता है कि ये थोड़ी इसकी स्पीड बढ़ गई थी रोबोट की, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोबोट में टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ये आपकी बेटी को फेल दिखा रहा था। हमारे और आपके समझने के लिए सपोज दैट मार्जी का स्टैंडर्ड लेवल जो था, क्लास लेवल, वो 8th था और रोबोट की स्पीड चली गई थी 9th या 10th क्लास पे। तो इसलिए जब वो 9-10 के क्वेश्चन पुटअप करता था तो मार्जी उसके आंसर्स नहीं दे पाती थी, इसलिए वो फेल हो जा रही थी बार बार। और मार्जी को अपना क्लासरूम बहुत ही ज्यादा बोर लगता था, उसमें कोई भी चीज उसको अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि हमारे स्कूल्स की तरह ना वहां रेसेस थी, ना वहां पे प्लेग्राउंड था, ना वहां पे साथ बैठने वाले क्लासमेट्स थे, और प्रॉब्लम्स भी अकेले ही मार्जी को सॉल्व करनी थी। क्योंकि हम तो देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग किस तरह से आपस में मिलजुल कर होमवर्क कर लेते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में खेलते हैं। तो इस बारे में जानकर मार्जी को बहुत ज्यादा वो हैरानी हो रही थी, और वो बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी इस बारे में सुनकर कि पिछले पहले जो स्कूल्स होते थे वो इस तरह के होते थे। तो यही ये समरी, इसकी समरी में टोटल ओवरऑल यही है कि आने वाले 100-200 साल के बाद स्कूल्स कैसे होंगे, बुक्स कैसी होंगी और हमारे जमाने में कैसी हैं, और फिर आदमी कितना ज्यादा परेशान होगा, कितना ज्यादा जो है बोर होगा, इन सारी चीजों को लेकर इसकी समरी, इन सारी चीजों को लेकर इस चैप्टर को तैयार किया गया है डियर स्टूडेंट्स।